Good morning, students. The topic that we are going to see today is Fayol's Principles of Management. Now, before knowing what this management guru has suggested for the efficient running of the organization, first of all, let's have a small introduction of Henry Fayol. Henry Fayol, a French mining engineer, he has developed the management theories for the better organization of the labor so that you will be in condition to control the production cost in an enterprise. He was the very first person who has identified these functions of management, that is planning, organizing, coordinating and controlling. For the effective functioning of the organization, Fayol suggests that there should be categories of business activities into technical, commercial, financial, security. This is because of his thought that you can see, you can listen in terms of technical business or commercial business or financial business and so on. He also suggested that if managerial efficiency is required, a manager must have some appropriate education, knowledge and experience along with physical and moral qualities. Based on his on-job experience, he has developed 14 principles of management that we are going to have a look. Now, the very first principle which was suggested by Fayol is division of work. Now, it is not possible for an individual to perform different types of tasks with same efficiency. ठीक है, कोई भी एक बंदा हर तरह का काम सेम एफिशिएंसी से नहीं कर सकता बिकॉज उसकी खुद की लिमिटेशंस होती है. It is therefore understanding this situation of a labor, Henry Fayol, he has developed one principle related to division of work. So what do you mean by division of work? It means the work is divided into small tasks or job, and each worker who is working on that task, he is required to work in that task so deeply that his efficiency can be increased and he gains specialization of doing that work. तो डिविजन ऑफ वर्क का मतलब हर एक आपका जो भी काम है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो और हर बंदे को वो टास्क करने का, जो इंडिविजुअल टास्क है वो टास्क करने का काम उसे दे दो ताकि उसकी वो काम करते करते क्या हो जाएगा, उस काम को करने में माहिर हो जाएगा. सो द मेन इंटेंशन ऑफ डिविजन ऑफ वर्क वाज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट. And this division of work will lead to specialization. Now, it is because of this principle, division of work, that you can see the organization is being divided into different departments, that is finance department, marketing department, HR department, production department and so on. And because of this principle only, because specialization is required, all the person who are having specialized knowledge of that particular field, they are into different departments. जैसे जिसको फाइनेंस की, अकाउंट्स की नॉलेज होगी, ही और शी विल बी इनटू द फाइनेंस डिपार्टमेंट. जिसको मार्केटिंग की नॉलेज, एडवर्टाइजिंग की अच्छी नॉलेज, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, ही और शी विल फाइंड इट्स प्लेस इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो इट इज नथिंग बट डिविजन ऑफ वर्क, दिस फॉलोइंग ऑफ द डिविजन ऑफ वर्क. Now, division of work can be seen at other places too. When I am talking about division of work, it is not that it can be seen only into organization. This division of work is present everywhere. Whether it is a home, whether it is a hospital, whether it is a government organization, school or anything. जैसे for example school. So in school also division of work is applicable. ठीक है, जैसे स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं, हर काम एक ही बंदा नहीं कर सकता है. So different people are allocated different work. जैसे for example कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अगर एकेडमिक्स के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो इंचार्ज फॉर एकेडमिक्स आर देयर. सिमिलरली इंचार्ज फॉर डिसिप्लिन कमिटी होती है जो सिर्फ डिसिप्लिन पे ध्यान देगा. सिमिलरली कोई कोरिकुलर एक्टिविटीज है तो सिर्फ वो एक बंदा उसके ऊपर ध्यान देगा. सो दैट इज नथिंग बट दैट इज अ डिविजन ऑफ वर्क. सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल गिवन बाय Fayol. The second important principle which has been suggested by Fayol is authority and responsibility. Now, what do you mean by authority? Authority means right to give orders and obtain obedience. Authority का मतलब क्या है? आपका हक होना चाहिए, आपके पास एक राइट होना चाहिए कि आप किसी को कमांड दे सको या ऑर्डर दे सको और उसके बदले में जो भी सामने वाला बंदा है वो आपके ऑर्डर को सुने और उसे ओबे करके उसे फॉलो करे. So authority means right to give orders and obtain obedience. Whereas what do you mean by responsibility? Responsibility is corollary of authority. अब इसका मतलब क्या है? Suppose I am a manager of a firm और मुझे एक responsibility दी हुई है कि इतने दिनों में इतना काम मुझे इन लोगों से करवाना है. So that is my responsibility to get a work done from the number of workers that is been allocated to me. अब ये responsibility मैं कब पार कर सकूंगी?
जब मुझे कोई अथॉरिटी दी जाएगी कि मेरे पास अगर राइट टू कमांड का अथॉरिटी होगा, अगर मेरे पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है कि मैं उन लोगों के ऊपर डोमिनेट कर सकूं या उनको कमांड कर सकूं, तो ही सामने वाला पार्टी मेरी बात सुनेगा, वर्कर सुनेगा। ठीक है, सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? अगर मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिलनी ही चाहिए। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कोरोलरी ऑफ authority. Now, this authority can be of two types. It can be an official authority, which means the authority to command, or it can be a personal authority, which is nothing but authority of the individual manager. तो ये principle of authority and responsibility क्या बोलता है? It indicates that a manager always requires certain authority so that he or she will be able to fulfill their responsibilities. But it should be taken care that a balance is maintained between the authority and the responsibility. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारा अथॉरिटी दे रहे हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दे दी लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए आपको कोई अथॉरिटी ही नहीं दी हो। ठीक है, तो इट शुड नॉट बी द केस। बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी शुड बी इन हैंड एंड हैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है जिसको सपोज कोई एक डील नेगोशिएट करनी है बायर के साथ। ठीक है, तो ही फाइंड्स की अगर मैं क्रेडिट पीरियड, ठीक है, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड देता हूं मेरे बायर को, तो ये डील मैं क्रैक कर सकती हूँ और साथ साथ मेरे कंपनी को बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। लेकिन कंपनी ने मुझे कितना पावर दिया हुआ है? कंपनी बोल रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 40 दिन तक की मोहलत, पेमेंट्स की मोहलत दे सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी हुई है कि मुझे टारगेट खत्म करना है, मुझे ऑर्डर डील क्रैक करनी है, लेकिन मुझे उसके सामने उतनी अथॉरिटी नहीं मिली, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लेस। ठीक है, सो इससे क्या होगा? देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन दिस केस मैनेजर को क्या होना चाहिए? इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर वो 60 दिन में अगर इंटरेस्ट के हक में, कंपनी के हक में है, तो उसको उतनी अथॉरिटी मिल जानी चाहिए कि मैं क्रेडिट पीरियड 60 डेज का ग्रांटिंग कर सकूं। सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. This authority can be even of two types. It can be a formal authority or it can be a informal authority. Now, what do you mean by formal authority? It means which is affixed as per the rules and regulations given by the organization. ठीक है, and informal authority का मतलब क्या है? It is the power to negotiate with the stated authority. हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको informal authority देते हैं तो कोई भी इनफॉर्मल वे में उसका अनड्यू एडवांटेज ना ले ले. सो दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल गिवन बाय फेओल इज डिसिप्लिन. यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि लाइन में चलो या ठीक ठाक से बैठो या चुप बैठो. डिसिप्लिन हियर इट इंडिकेट्स दी whatever organizational rules are being set up, it has to be followed, and whatever employment contract, जो भी employment contract में रखा गया है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में या मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, वो दोनों को ही उसको इज्जत देनी होगी. एंड इट शुड बी डन बाय बोथ द एम्प्लॉयज एज वेल एज द मैनेजमेंट. उन दोनों को एक दूसरे के लिए कोई भी किसी भी तरह की प्रेजुडाइज या बायसनेस नहीं होनी चाहिए. सो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या बोलता है? द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन स्टेट्स दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लियर और फेयर अग्रीमेंट होने चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और अगर नहीं किया तो पेनल्टीज उसकी क्या क्या हो सकती है. सो स्टेटेड पेनल्टी शुड बी ऑल्सो देयर. नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ डिसिप्लिन का क्या है? जैसे सपोज मैनेजमेंट एंड कोई लेबर यूनियन है, दे हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट जहाँ पे वर्कर्स हैव अग्रीड टू पुट कि वो एक्स्ट्रा अपना मेहनत करने के लिए तैयार है और उसके लिए उनको कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं चाहिए ताकि वो कंपनी को लॉस के स्टेटस से बाहर निकाल सके. सो ये एक अग्रीमेंट हुआ है वर्कर्स की तरफ से मैनेजमेंट को. इसके रिटर्न में मैनेजमेंट ने भी ये प्रॉमिस किया है कि जैसे ही कंपनी का जो लॉस से वो ऊपर आ जाए और कंपनी की पोजीशन बेटर हो जाती है तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर. तो ये दोनों के बीच में क्लियर अग्रीमेंट हो गया कि वर्कर अपने तरफ से पूरी मेहनत करेगा, जितना हो सकता है उतना लॉस को कम करने की कोशिश करेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा. एंड एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ने भी ये प्रॉमिस दिया है कि ये एक बार हमारी कंपनी की सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो मोर एंड मोर वेजेस विल बी गिवन. तो यहाँ पे डिसिप्लिन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बोथ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट दे हैव टू ऑनर देयर कमिटमेंट. दोनों को, ये दोनों ने जो भी वर्क कमिटमेंट किया हुआ है ये दोनों को वो पूरे बाय इज्जत से वो पूरा करना है. सो दैट इज डिसिप्लिन. एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसके ऊपर फेओल ने हमेशा फोकस डाला है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय.
कोई भी एक एम्प्लॉय अगर उसको किसी भी तरह का ऑर्डर लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस या एक ही सुपीरियर से वो ऑर्डर लेगा. So the principle of unity of command means that each participant in the organization should receive order and should be responsible only and only to one superior. That means there should be only one boss for every individual employees. इससे क्या होगा, उसी जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनको वर्कर्स को वो उनको सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, so that they will get clear direction to perform a task. If अगर किसी भी तरह से ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल आप नहीं फॉलो करते हो, यानी इफ यू वायलेट द यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, इससे क्या होगा, इट विल लीड टू अंडरमाइनिंग ऑफ अथॉरिटी, इनडिसिप्लिन, कंफ्यूजन एंड इंस्टेबिलिटी. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने अपने सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप प्रोडक्ट एक्स बनाओ, लेकिन सेल मैनेजर आके सुपरवाइजर को बोलते हैं कि तुम प्रोडक्ट एक्स ना करके तुम प्रोडक्ट वाई बनाओ बिकॉज प्रोडक्ट वाई की डिमांड बहुत सारी है. तो इससे क्या होगा, वो जो बंदा है, ठीक है, सबऑर्डिनेट है, वो कंफ्यूज हो जाएगा बिकॉज ही इज गेटिंग टू सेट्स ऑफ कमांड फ्रॉम टू बॉसेस. सो सुपीरियर विल गेट कंफ्यूज और वो डिसाइड कर सकता है कि बेटर है कि मैं कुछ ना करूं. सिंपल, जैसे आप घर पे भी बैठे हुए और आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि आप अकाउंट्स पढ़ो और आपके पापा आपको बोल रहे हैं कि नहीं तुम मैथ्स करो, तो व्हाट यू विल डू. तो बेटर है आप यही सोचोगे कि दोनों की चीजें ना सुनूं और मैं टीवी देखने बैठ जाऊं. सो दैट इज नथिंग बट दैट इज वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. एंड if you will receive dual instructions, of course the chances of underperformance will be more. That's why this is the principle on which Fayol is focusing more and more. कि अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी ऑर्डर रिसीव करना है, इंस्ट्रक्शन रिसीव करना है, so better you receive instruction only from one and one individual or one and one manager only. So that's all for today. Tomorrow we'll see next 4 sets of principle given by Fayol. Thank you.